Okay. So your metal and non-metal properties are over, right? We have done. Okay, just tell me. बेटा लास्ट पेज पे कौन बैठा है? दरवाजा जरा बंद कर दो। अच्छा, लास्ट बेंच वाले आपको बोर्ड दिख रहा है क्या? चलो, अभी वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड चैप्टर। इन दैट यू से दैट हमने किया है एलिमेंट्स तक, एलिमेंट्स हो चुका है, राइट? उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल का प्रॉपर्टी करवाया नहीं था क्या? अरे सीबीएसई में पूरा चैप्टर हो गया, मैं जीएससीबी की बात कर रही हूँ। हाँ वही बोल रही हूँ ना, वो तो हो गया है ना। तो हेडिंग दे दो मेटलॉइड्स, मैं लिखती हूँ बोर्ड पे। सीबीएसई को लिखना नहीं है, सीबीएसई को रिवाइज करना है, ठीक है? और सीबीएसई आपसे जब भी मेरे क्लास में आएगा अपना रचना सागर लेके आएगा, ठीक है? You will come with that in my class. Ma'am, Yes, beta. ma'am, if we want, so we can also write. Yes, definitely. Okay, ma'am. Ma'am, because when you started, my half chapter was remaining. That's why. No issues. You can start. Chalo. Let's focus upon. Okay. Ma'am, Yes, guys. हाँ, क्या हुआ ma'am, बेटा? ma'am, I got my half yearly syllabus. Okay, and what it is? Ma'am, chapter 1, chapter 2, not 1, chapter 2, 5, 6, 8, and 9. Okay. So you are from CBSE, right? Yes, ma'am. Okay. So I guess as per my knowledge, CBSE course has been over since long. Even I have done one more chapter of your second term, which is the 13th chapter. Yes, so ma'am. I guess from 3 and 4, I guess 2 or 3 chapters are only left to complete your syllabus. ठीक है? चलो, let's go. If you have any difficulty, you can surely ask me. Yes, ma'am. ऐसा निकालो तुम सीबीएसई वाले ऐसे ही बैठोगे क्या? हाँ, क्या? मैथ्स फिर से वही प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, share a textbook with some of your friend if you want. You can sit with any of the guys. Yes. हाँ, जिसने नहीं लिखा है लिख सकता है, ऐसे सिली क्वेश्चंस मत पूछो मुझे। हाँ, 1, 5, then first 5 chapters. तो तुम्हारा तो स्पेशल केस में जाएगा। Which school are you from? So you are third board also. You are from Gujarat board. That's why. Also 1 and 5 are been done. Second I am going. Right. So 3 and 4 होगा ना. 3 and 4 तो it will take. You can always ask me the doubt if you want. Okay. Okay. Let's start the lecture. Metalloids. So what are metalloids? Metalloids are those substances which has properties of metals as well as non-metals. Example, we have boron,
silicon, we have germanium, these are known as metalloids. These are some substances which possesses the properties of both metal and non-metal, so they can act in both the ways. Okay, right. Now coming to the mixtures, we have done mixtures, right? Heterogeneous and homogeneous को chart करवाया हुआ है. So we directly go to the compounds now. Compounds. So what are compounds? But I do one thing now. If you are here just for math, in 9th standard now, why don't you practice, I think, few more examples of whatever is being taught to you. Compounds. A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion. Example H2O. Now I'll explain you how H2O. Just let me complete the writing part. Okay, then I'll explain. Then we have alloys. Ma'am, can you shift the camera towards right side? One moment, please.
यहाँ पे आओ ना, ये लिखा है ना ओशन क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे ओशन का जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसका डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना है पॉइंट वाइज। समझ में आया? जो लोग सीबीएसई से नहीं है, दिस इज फॉर गुजरात बोर्ड, जब आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में आओ तो ओशन में क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ solution. So you have to copy those 5 points here and then you will write on this. So need almost half a page for it, and then start type of solution. By chance you have written it in a continuity or somewhere here or here, complete this and then write it on this. तो इसके बाद जगह समझ आ गया? तो किसी का भी सीबीएसई वाला कितने लोग हैं इधर? कितने रेजिमेंट हुए जो फ्रेंड? तो फ्रेंड, how many of you are from CBSE? Apart from you, just see that अच्छा, recognize कर दिया के बाद अच्छा, so you have seen the faces, right? Anyone please take your notes plus student ready पूरा नोट्स किसने लिखा है? हाँ तो कल परसों लेके आना अच्छे लेंगे भाई, इसका ले और कंप्लीट इट सेकंड चैप्टर, ठीक है? चलो, should I start explaining? कितना बाकी है? मैम लास्ट। Okay. May I now? Okay, I'm giving you 2 minutes of time. चलो, complete करो फटाफट। यस अरे, anyone please give this 10 of what is over the regulator. बाहर आना पड़ेगा। वो नहीं ला रहा है। अच्छा हो गया? Online, can you listen to my voice? यस मैम, बट इट इज कमिंग लो। यस मैम। Am I audible now? Yes ma'am. Yes, ma'am. Now it is fine, na? Now it's not coming low. Yes ma'am, it is fine. Okay. Guys, may I start the explanation, please? Then you can write. See, here I have written. Okay, I just move this here. So here I have written it is H2O compound. So what are compounds? Compounds are those elements which
I mean those substances which are made up of 2 or more elements, right? And I have given an example of hydrogen and water. So in water we have 2 elements combining. We have hydrogen and oxygen. Now here it's been written that they will be in a fixed proportion. So what does that fixed proportion means? So and that too by mass. So हाइड्रोजन का मास है 1. अच्छा, अब ऐसा कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे? How many hydrogens are there? 2. So अगर एक का मास 1 है तो 2 का मास कितना होगा? So I'm writing it over here. 2. ऑक्सीजन का मास मैं बता देती हूँ 16. अब इसको रिड्यूस करो क्या आएगा? 1 used to it. Absolutely right. चलो अभी मैं H2O को लिखती हूँ. 10 molecules of H2O मुझे चाहिए मेरे रिएक्शन के लिए. So ये 10 molecules of H2O है. तो 10 into 2 is 20. 20 into 1 20. 20 is the mass of hydrogen for this particular water. अभी 10 into मतलब 10 into 16. So it will be 160. reduce it. तो मास से 1:2. मैं कितना भी अच्छा चलो यहाँ पे मैं 8 डालती हूँ. तो 8 2 सा 16. 16. 8 16 सा टेबल्स नहीं आते. 120. Reduce it. 16 8 सा 1 का 8 हो गया ना. तो मैंने कितना भी इधर डाल दिया, इधर 8 किया 10 किया कुछ नहीं डाला तो भी रेशियो क्या आया? सो मतलब ये पिक वाटर कहीं से भी ले लो, कितना भी ले लो, इट विल बी इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन. अंडरस्टूड? इज देयर एनीवन हु डिडंट अंडरस्टैंड? समझ आ गया? ओके. सो दीज आर द कंपाउंड्स. अब एलॉयज की बात करते हैं. एलॉयज में सिंपल बता दूं, दो मेटल इज द homogeneously they will be mixed. Now when you say homogeneous mixture, what does it mean? It means that you cannot bifurcate them or their concentration by naked eye. जैसे gold. You have seen your mothers wearing gold. Now gold consists of copper also. Those ornaments of gold consist of copper. So can you tell from that ornament just by seeing कि इतना copper है इतना gold है? No. It is homogeneously mixed ना. So that is what is known as an alloy. Alloy में जरूरी नहीं है कि 2 ही metal आएंगे. It can be 3 metal also. So it will be in that format. Understood? One moment. बेटा उधर से स्विच चालू कर दो. Okay, so that is what is alloy here. Here I have given you an example of brass. Brass is made up of 2 metals, that is copper and zinc. But when I represent it in front of you, when I make you see the brass, you won't be able to recognize or bifurcate it in a 2 different metals. So that is what is alloy to us. Now coming to the another part of the chapter which deals with solution, suspension and colloids. So every homogeneous mixture is an example of solution. ठीक है? अब solution जब बोलते हो तो solution में लिखा है कि homogeneous mixture of 2 or more substances. Solution consists of 2 substances. First is solute, second is solvent. Solute का मतलब होता है substance which is dissolved in liquid. मेरे पास water है, I am dissolving salt in it. तो इसमें solute क्या होगा? Water या salt? Salt. Salt. And
the liquid in which the solute is getting dissolved is known as solvent. तो CBSE बैच को अभी एग्जाम था तो एक क्वेश्चन था that what is solute and solvent in tincture of iodine, ऐसा क्वेश्चन पूछा था. And the answer to that was iodine of dissolved. Tincture of iodine is when we dissolve iodine in alcohol. तो गुजरात बोर्ड ही आंसर करेगा इसमें सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा. गुजरात बोर्ड से है रेगुलेटर. हाँ बोलो. राइट, वेरी गुड. तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट अलग हो गया, सिंपल हो गया. अच्छा, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, अब आपने जैसे बॉर्नविटा डालते हो मिल्क में, राइट, तो वो बॉर्नविटा सॉल्यूट हो गया, तो दैट विल गेट डिस्पर्स, वो पूरा डिस्पर्स हो जाता है मिल्क पे, फैल जाता है, तो दैट इज नोन एज डिस्पर्स पार्टिकल्स एंड मिल्क विल बी नोन एज डिस्पर्स मीडियम. गॉट इट? किसी को कोई डाउट है अब तक? नहीं. So ma'am, what is dispersed phase? Dispersion matlab to get on the surface. Dispersion phase is the same thing that is given in your textbook. There would be a Yes ma'am. point something का figure है, table है, I'm sorry, table है. Okay, that table is in fact important, but we will discuss about it when we talk about colloids, because that is regarding colloids, that's why. Coming to solutions, solutions are of two types. Solutions are aqueous and non-aqueous. Now, what does aqueous means? Aqueous का मतलब होता है anything when dissolved in water. जैसे you dissolve salt, you dissolve sugar, or you dissolve vinegar. Vinegar in acetic acid. So vinegar is dissolving acetic acid in water. So that is also known as aqueous solution. ठीक है? Anything when you dissolve apart from water. जैसे मैंने किसी अल्कोहल में डिसॉल्व किया है कुछ चीज, जैसे आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन इज अ नॉन एक्वियस सॉल्यूशन. व्हाई? बिकॉज़ हियर आई एम नॉट यूजिंग वाटर टू. क्या हुआ तुमको? हाँ कोई बात नहीं, जो करना है कर दो. बड़ा एक काम करो, तुम पीछे के बेंच पे चले जाओ. You will take my breath away, I swear. You may सामने बैठना है, सामने दो बेंच खाली है, जहां बैठना है बैठ जाओ, इसको मत हिलाओ बस. Yeah, so tincture of iodine is a non-aqueous solution. Are we clear with the aqueous and non-aqueous? Okay. Now further the properties of solution that will come after I explain you the types of solution. So now solutions के type क्या है? The first is solid in solid. Solid in solid में the example which I have taken is of alloys. Alloys are also known as solution. Because वो homogeneously mix हो रहे हैं, और solution का मतलब क्या है? Homogeneous mixture of two or more substance, right? So alloys are the example of solid. Solid and liquid, we all know salt solution, sugar solution, whatever you want to write, you may write as it. फिर next comes liquid in liquid. जैसे मैंने विनेगर बोला, एसिडिक एसिड जो होता है ना, दैट इज इन अ कंसंट्रेटेड फॉर्म. हमको ग्लेशियर में से मिलता है एसिडिक एसिड, और उसको हम पानी डाल के डिसॉल्व करते हैं, तब जाके विनेगर बनता है, जो आपके घर में खाने में यूज होता है. सो दैट इज बेसिकली नोन एज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. दूसरा एग्जांपल मेरे पास है अल्कोहल का ग्लास, जैसे अल्कोहल में पानी डिसॉल्व करते हैं, सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. पर ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में विनेगर पूछा जाता है, तो अल्कोहल मत लिखना, विनेगर लिखना. गैस इन लिक्विड वी हैव सोडा वाटर, CO2 गेटिंग डिसॉल्व्ड इन वाटर. वो तो वैसे भी हम जो लॉरीज होती है सोडा पीने जाते हैं तो उधर भी देखते हैं, वो छोटी छोटी बॉटल्स होती है, ऐसे ऊपर से खोलते हैं तो एक आवाज आता है ना, वो करना मत. एंड लास्ट इज गैस इन गैस, दैट इज बहुत सारे, अभी एयर है तो बहुत सारे भी, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो हमको ऑक्सीजन दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोजन इज देयर, नाइट्रोजन इज देयर. सो इन एयर को देख सकते हैं? नहीं, we cannot see it, and that is where there are lot many gases into it mixed, so it's homogeneously mixed, that is known as solution. समझ लिया solution? अच्छा,
अब सोल्यूशन में एक चीज, जैसे हम देख नहीं सकते हैं पार्टिकल्स को जब डिसॉल्व हो रहे हैं, तो क्यों? अब मैं प्रॉपर्टीज पे आ रही हूँ। सोल्यूशन, दे आर द मोस्ट स्टेबल कंपोनेंट्स, मोस्ट स्टेबल कंपोनेंट्स, ठीक है। सोल्यूशंस में क्या होता है, उनकी जो पार्टिकल जो हम डिसॉल्व करते हैं ना, उसकी साइज 1 नैनोमीटर होती है। कितनी? 1 नैनोमीटर, which is equal to 10⁻⁹ मीटर। मतलब नैनोमीटर मतलब क्या? जैसे मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, लास्ट इज पिकोमीटर, 10⁻⁻²। ठीक है, तो इतनी छोटी साइज है, इसीलिए सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते। सेकेंड थिंग कम्स एज जो ग्लास होता है। अब ले लो सॉल्ट सॉल्यूशन का ग्लास है, मैं यहाँ पे फिल्टर पेपर रख रही हूँ। I am pouring that glass of the salt solution into it. Am I going to get anything over here on the filter paper? No, ma'am. Entire solution will get filtered out. So when it is been filtered, we don't get anything on the filter paper. Now, when the size is so much low, will I be able to see those particles with the help of microscope? How come? Because micrometer की size ही नहीं है, मैं तो उससे भी छोटा नैनोमीटर में डील कर रही हूँ। मैं कहा माइक्रो में डील कर रही हूँ। माइक्रो होता that is 10⁻⁻⁶, तब जाके मुझे पार्टिकल दिखते। -6 का मतलब और 3 जीरो लगा दो, और अगर एक जीरो भी कम होता तो भी चांसेस था कि हाई डेफिनेशन 45x में मैं देख पाती, बट आई कैन नॉट सी दैट, सॉल्यूशन नहीं दिखते। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी बॉटल है, इसमें पानी है, so I am keeping this particular bottle over here, so light will be able to pass through this bottle, right? Yeah. Okay, the bottle glass is being kept, तो भी लाइट ऐसा देखो ना पास हो ही रहा है ना आराम से। इसे स्टिकर लगाइए, लाइट आ रहा है ना इसमें से। अच्छा, ऐसा हो रहा है कि लाइट स्कैटर हो रही है? नहीं, लाइट इज नॉट गेटिंग स्कैटर। स्कैटर का मीनिंग क्या होता है? जैसे आप फॉरेस्ट में जाते हो, है ना, तो पेड़ के बीच में से जो सनलाइट निकलती होती है, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हिच इज नोन एज स्पिंडल इफेक्ट। ओके, सो दैट इज not there. So basically here the scattering of light in the solution does not take place. Are we clear? These are the properties of solution which you are subjected to write from question number 8 question. And CBSE people who are writing the notes, they can ask from their friends to give them entire notes, or else they can also, if you have Rachna It is Sagar, there in textbook, ma'am. it is there in textbook, it is there in Rachna Sagar also. So if you don't want to ask, you can search for Rachna Sagar as well. Okay, chalo. In first part also you can ask for my videos. ये चैप्टर पहले हो चुकी है। हम लोग मई में मिले या जून में मिले? अप्रैल में मिले थे? अप्रैल में नहीं मिले यार, हम लोग मई में मिले होंगे। तो मई जून का जो है ना सेगमेंट, उसमें करवाया था, तो देख लेना। ओके ओके, हाँ तो भाई अप्रैल में तो हमने 5th चैप्टर किया होगा ना, फर्स्ट 5th चल रहा होगा, फिर फर्स्ट चला होगा, किया था, पूरे सेकंड किया था। तो पहले 5th था, फिर फर्स्ट नहीं हुआ, फिर फर्स्ट किया हमने, फिर हमने सेकंड लिया तुरंत ही, हमने फिर 6th नहीं लिया। और जब मेरे पास गुजरात बोर्ड आया, गुजरात बोर्ड और सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर पैरेलल चला। नहीं, हाँ फर्स्ट करवा नहीं, पैरेलल नहीं चला, आगे पीछे हो गए थे, और कोई 1 महीने के बाद गुजरात बोर्ड हुआ। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो सीबीएसई में जो हो गया, अच्छा ये हो गया, अभी वाला बाकी।
सीबीएसई वालों को लिखना है, लेकिन सीबीएसई वालों के पास क्वेश्चन नहीं है ना, सेम क्वेश्चन नंबर फॉलो नहीं होगा। सीबीएसई वालों को रचना सागर में से क्वेश्चन ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी लॉ और कुछ ना कुछ टेक्स्ट बुक में भी है। चलो नेक्स्ट वी हैव सस्पेंशन। सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज 15 एंड 16, ठीक है। अब मैं जो लिख रही हूँ वो आप लोगों को मैं बोलूँ कब लिखना है, वो भी जरूरत है तो वरना है। Suspension, they are known as heterogeneous mixture. Suspension are known as heterogeneous mixture. Ma'am, colloids are suspension. Yes, they are. Colloids and suspensions both are differently. But both are heterogeneous mixtures. Okay, so what is suspension? Those substances which are insoluble in water. Those substances which are insoluble in water, they are known as suspension. The examples of suspension would be in muddy water, chlorine water, chalk water, sand particles, suspended in water, Ma'am, milk can be there. what? Milk. Milk. Colloids. Colloids. Okay. Suspensions are those particles which are absolutely heterogeneous, and example of them is like chlorine water, chalk water. So whenever you take a suspension in your hand, if I'm showing you a glass of suspension, you will always find solute particle to be settling down, and the liquid in which they have been dissolved वो ऊपर आ जाएगा. So you will see two phases into that glass. Understood? So that is what is known as suspension. जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि आप सैंड वाटर ले लो, तो सैंड को आप पानी में डालोगे तो सैंड नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा. तो वैसा ही चॉक और वाटर में होगा. चॉक को पानी में डालोगे ना तो धीरे धीरे चॉक का जो पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा. ठीक है. तो वैसे सॉल्यूशंस वैसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सस्पेंशन. आर वी क्लियर? अच्छा, सस्पेंशन की साइज होती है 100 नैनोमीटर. सस्पेंशन की पार्टिकल की डायामीटर होती है 100 नैनोमीटर. ठीक है. ये लिखना नहीं है ना, लिखना नहीं है. फिर कितना लिख को लिखना है. क्या हुआ? हाँ हाँ समझ गए. आपको अभी एग्जाम आ रही है क्या? तो नेक्स्ट वीक कर ले. आई टीच. क्या नाम है आपका?
अच्छा सस्पेंशन का अभी सुन लो। सस्पेंशन पहले तो हिट्रोजीनस है, सोना नहीं है भाई। सस्पेंशन हिट्रोजीनस मिक्सचर है। दूसरा, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज है 100 नैनोमीटर। अब ये ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करेगा सस्पेंशन, ठीक है। अगर मैंने फिल्टर पेपर में डाल दिया सॉल्यूशन को सस्पेंशन के, तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा या रहेगा कुछ फिल्टर पेपर में? पास हो जाएगा। तो सैंड वाटर है, तो फिल्टर पेपर रखा, उसमें से मैंने डाला, तो सैंड इधर फिल्टर पेपर में नहीं रहेगा, रह जाएगा ना? रहेगा। हाँ, सो दिस सॉल्यूशन वोंट पास थ्रू फिल्टर पेपर। समझ आया? ओके। नेक्स्ट इज एज, ये दो अलग अलग फेज है, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब वो अनस्टेबल है, समझे? और लास्ट इज माइक्रोस्कोप वाला। क्या हम इसके पार्टिकल माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे? यस। भाई हम नेकेड ऐसे देख पाते हैं, तो माइक्रोस्कोप का क्या जरूरत है? सेल को तुम नहीं देख पाओगे क्या? कौन देख पाएंगे। हाँ हाँ, तो बना अभी तेरा आंसर बना, ठीक है। सो वी कैन सी दिस पार्टिकल, वी डोंट नीड माइक्रोस्कोप, वी कैन सी देम विद द naked eye. Okay, so these are the 5 properties of suspension. Now let's go to colloids. colloids सब लोग ये इसका ना आप आधा पेज अगेन छोड़ दो, प्रॉपर्टीज ही लिखना है। ये 15 या 16 में प्रॉपर्टीज है, तो 16 लिख के आना। 15 में जो दिया है ऑलरेडी ऊपर मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आई वांट कोलॉइड। कोलॉइड में अभी कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ द लाइक यू नो सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट के जो पार्टिकल की साइज होती है ना, इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। ओके, so particle size of the colloid stays between 1 nanometer to 100 nanometer. Okay, the second point is that these colloids, so colloid किसे कहते हैं? Colloids they are the intermediate. आपको ये पूछा जाएगा what are true solutions? तो true solution का मतलब क्या होता है? solution ही होता है, ठीक है। और you are constantly yawning. It's better that when you come in the class now, either sit in a region where you don't have much air. The second is have some tea and come. If you can't, then move होके आओ, ठीक है। These colloid particles will show Tyndall effect. मतलब scattering of light will be seen in these particles. These particles again would be unstable, and there as they lie between 1 to 100 nanometer, right? So we cannot see them with the microscope. अब मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मिल्क का ग्लास है, मैं तुमको दे दूँ मिल्क इज एन एग्जांपल, मिल्क है, इंक है, ये सब एग्जांपल है कोलॉइड्स के। तो मैंने अगर तुम्हारे आगे दूध का ग्लास रख दिया, तो तुम उसको माइक्रोस्कोप में ऐसे एक ड्रॉप देख पाओगे उसका पार्टिकल? won't be able to see, because माइक्रोस्कोप में जो साइज चाहिए हमको, इट शुड बी लार्जर। 100 होता तो देख पाते, और सस्पेंशन में तो 100 एंड मोर होता है, हम देख पाते, वरना हम वो भी नहीं देख पाते। माइक्रोस्कोप हो गया। अच्छा हाँ, हाँ, दूध का ग्लास मैंने रखा है, मैं उसको फिल्टर पेपर में डाल रही हूँ, तो पास हो जाएगा या कुछ रहेगा फिल्टर पेपर पे? पास हो जाएगा। So entire colloid will be getting passed from the filter paper. अच्छा, वैसे colloids ना normally बहुत ही reactive personality वाले होते हैं, लेकिन कुछ colloids ऐसे भी हैं जो बहुत stable होते हैं, और ज्यादातर colloids stable दिखे जाते हैं। जो examples है उसके उस तरीके से बोल रही हूँ। So हम लिख सकते हैं that colloids will be stable, quite stable. The word correctly used is quite stable.
not like so stable or very stable. They're quite stable. So these are the properties of colloid. Now colloid has its own classification. आप सबके पास टेक्स्ट बुक है ना? टेक्स्ट बुक निकालो और मेरे को एक क्वेश्चन दे दो. क्वेश्चन बेटा पास करो ना क्वेश्चन. टेक्स्ट बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड निकालो. ये वाली एक टेबल होगी, आप लोगों को दी होगी. डिस्पर्जन फेज और आगे तक नहीं. हाँ बस वो वाली डिस्पर्जन फेज है ना, ऊपर लिखा डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्जन फेज. आगे करो और पेज नंबर 18. भाई पेज नंबर 18 पे है. यस. सो कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं, कोलॉइड कितने टाइप के होते हैं? सो वी हैव सोल, वी हैव सॉलिड सोल, वी हैव solid aerosol, we have emulsion, we have foam, solid foam and gel. बेसिकली कोलॉइड इतने टाइप का होता है. सो इसमें आपको ये समझना है, जैसे मैं सोल की बात करती हूँ तो सोल में डिस्पर्जन, सोल इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो यू कैन सी डिस्पर्जन, डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम है लिक्विड. जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, पेट की ले लो या मिल्क के, वो पानी में डिसॉल्व है. तो वी कैन नो दैट दिस पर्टिकुलर पार्टिकल्स दे आर इन द सॉलिड फॉर्म. तो डिस्पर्जन फेज जो है वो सॉल्यूट हुआ और डिस्पर्स मीडियम हमारा क्या हुआ? सॉल्वेंट. तो डिस्पर्जन फेज और मीडियम के बीच में डिफरेंस पता चला? कितनों को नहीं पता चला? डिस्पर्जन फेज का मतलब है जो सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में. जैसे अगर नमक और पानी होता तो नमक होता डिस्पर्जन फेज और पानी होता तो वो होता डिस्पर्जन मीडियम. मीडियम मतलब जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो. अंडरस्टूड? ओके. अब वही चीज हमको कोलॉइड्स में देखनी है. तो पहले आपने देखा कोलॉइड्स में सॉलिड लिक्विड. तो सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल है मिल्क एंड पेंट. तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पेंट है तो लिक्विड जैसे अल्कोहल है, एसिड है, उसमें डिसॉल्व किया जाता है पेंट. तो वो डाई होती है, तो तुम डाई को डिसॉल्व करते हो. ठीक है बेटा? इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग आउटसाइड सेकंड क्लास बेंच? देन ट्राई टू nag over here rather than nagging outside. Then second category we have is solid soul. Solid soul is color gemstone. क्योंकि इसमें देखो dispersed phase भी solid, दोनों solid है. तो यहाँ पे हमको दो solid को dissolve करना है जो colloid है. तो इसकी example क्या है? We have gemstone, we have milky glass. ऐसे glasses आते हैं ना जो see through नहीं होते हैं, इसमें आप देख नहीं सकते हो, मिल्की ग्लासेस बोलते हैं. जो पता है कई बार जैसे आप जाओगे ना तो केबिन में लगाया हुआ है पूरा मिल्की ग्लास, कैन सी एंटायर केबिन ऑफ सर. हाँ, तो उसे कहते हैं हम एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इज एरोसोल, दैट इज सॉलिड और लिक्विड इन गैस. इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है एरोसोल की? स्मोक ऑफ द व्हीकल. आप पेट्रोल भरवाते हो, निकलती गैस के फॉर्म में है. तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो उसके फॉर्म में गैस निकलता है, तो उसमें सॉलिड काले काले पार्टिकल निकलते हैं ना, तो वो हो गया सॉलिड. और डिसॉल्विंग मीडियम क्या होता है? एरोसोल का गैस. देन कम्स एरोसोल. एरोसोल मतलब आप लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हो गैस, जैसे फॉग और मिस्ट. फॉग मतलब वो स्प्रे नहीं, ठीक है, ये होता है ना बाहर फॉग होता है the monsoon and entire winter. Yes, in the northern part. हाँ. So that is what is known as aerosol. फिर आता है foam. Foam वो जो शेविंग क्रीम में कैसा फोम बनता है, तो उसमें कौन से? उसमें लिक्विड और गैस होती है. वो जो बुलबुले बनते हैं ना, that is due to the gas. तो गैस भरी है लिक्विड, साबुन के पानी में लिक्विड में आप गैस भर दो. इसलिए काफी लोग जो है ना शेविंग करते वक्त साबुन की चला लेते हैं.
क्योंकि वो साबुन का पानी होता है लेकिन उसमें गैस भरी है। तो जैसे आप व्हाइट कलर की एकदम वो देखते हो ना जो आती है झाग, दैट इज ड्यू टू द गैस। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं इसका। हम जो बबल्स निकालते हैं ना तो साबुन के पानी को ऐसे फूंक मारते हैं तो बबल्स निकलते हैं, तो वही बबल कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। ये फोम में शेविंग क्रीम को थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व करें, Ma'am, निकलेंगे। हाँ, ma'am, what is difference between fog and mist? fog contains little bit of less watery content and it contains more gaseous form, and mist is something which you will actually can feel like a dew water. So उसमें liquid format ज्यादा होगा. Okay, ma'am. Okay, next we have the solid form जहाँ पे what are you guys doing? Where is your science book? Have I completed the lecture? If I completed the lecture, no, na, then why in between of the lecture you have started packing the bag and trying to carry out the math subject? Once I get out of the class, then you should do this all. ठीक है? लोगों को अगर ये लेक्चर में प्रॉब्लम होती है तो इट्स बेटर दैट यू स्टडी समथिंग एल्स. नेक्स्ट इज सॉलिड फॉर्म जहाँ पे गैस और सॉलिड लेना है. तो आपका वो जो क्यूबिक स्टोन आता है ना जो हाथ पे घिसते हो उस पे देखना छोटा छोटा ऐसा खड्डे होंगे. So that will help you to remove your dirt. Even pumic stone आप पानी में डालोगे ना तो बुलबुले निकलेंगे. It shows the presence of gas. Sponge दूसरा है. Sponge में पानी भर के आता है ना. पानी नहीं होता तब गैस एयर भरी होती है. Next we have is emulsion, that is liquid. जैसे milk है, oil in water है, तो दोनों liquid है. Spread it on the layer of each other. Last is gel. Gel मतलब jelly या फिर butter. So यहाँ पे क्या होता है? Liquid is been dissolved in solid. Liquid is getting dissolved. Jelly का पाउडर आता है ना, तो जेली के पाउडर के हिसाब से पानी को कम डालना होता है. So liquid is getting dissolved in solid and forming jelly. अगर ज्यादा पानी डालते तो वो जेली नहीं होता, वो ऐसे रकाबी में तुम लेके पी सकते हो, मतलब ऐसा कुछ हो जाता. Something which you can always have in the mug or saucer. ठीक है? So these are known as colloids. So ये जो टेबल है वो बुक में आ जाना चाहिए. So यहाँ I have completed solution, suspension and colloids. I hope every one of you have understood. And now we will be shifting to the next portion where we are focusing upon the numericals. And after numericals, we will come in the zone of separation techniques. So I request you all not to be absent in the next 2 lectures at least. Chalo, bye. Bye, ma'am. Bye, I ma'am. need someone host. Wait, who should I be making the host? Ma'am, make me the host.